व्याख्यान होगा उस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे और आप में परिष्कार होगा। हम अपने प्राचार्य जी डॉक्टर एस पांडे, जिनके आशीर्वाद, पूर्ण मनोयोग, कर्तव्य परायणता, कर्मठता, दृढ़ शक्ति के कारण यह राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, उनका भी स्वागत करते हैं। तथा हम अपने शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा श्री डॉक्टर अमित भारद्वाज जी के प्रति भी कृतज्ञ हैं और उनका भी स्वागत करते हैं कि जिन्होंने राजकीय महाविद्यालय लालगंज मिर्जापुर को इस योग्य समझा कि हमें राष्ट्रीय कार्यशाला कराने की स्वीकृति प्रदान किया। आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु डॉक्टर रश्मि सिंह जी से आग्रह है कि वे आगे संपादित करें। धन्यवाद सर। प्राचार्य जी को जुड़ने में अभी समय है और तब तक मुझे लगता है कि हमें कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहिए, जिनको सुनने के लिए आज हम सब इस कार्यशाला में एकत्रित हैं। डॉक्टर सुमन मौर्य मैम वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इंतजार कर रही हैं अपने व्याख्यान का। तो मैम का एक परिचय, संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहती हूँ। मैम है सर as assistant professor in Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur. She is also recipient of gold medal, qualified NET JRF, and received prestigious M.N. Roy Award for writing. She has also selected as RAS 2007 batch State Civil Services, and currently she is member in syllabus committee in Rajasthan Board of Secondary Education. More than 15 research papers she has published in renowned research journals, and also invited speaker at Doordarshan, Patrika TV, Jan TV, ETV, GTV, Jantantra. She has also worked as convener of various national and international conferences and eminent educationist member in VMC of Kendriya Vidyalaya Sangathan. So ma'am, now we welcome you from all our organizing team. I invite you to take the stage and give your lecture. Thank you, ma'am. Thank you so much, Rashmi ma'am, for profound introduction of my brief. Am I audible? Yes, yes. Actually, I am not seeing myself in the screen, so that I am asking ki. Yes, audible. You are audible, ma'am. You are audible. Okay. Actually, I am not visible in my screen. Actually. Ma'am, you have to change your layout, maybe. Otherwise, you can pin yourself on your screen. Okay, it's okay. I have no problem at all. It's okay. It's okay to all of you now. Am I audible? Yes, ma'am. You are visible to all of us. Audible. Ji. Okay, it's okay. First of all, I want to congratulate and pay my gratitudes to Chief Patron Dr. Amit Bharadwaj sir, who is Director Higher Education, Uttar Pradesh Government. Patron Dr. S.K.S. Pandey sir, who is SIG Principal, SIG Government PG College, and foremost Convener Dr. Gaurav Tripathi sir, all delegates and dignitaries presenting over here. This is 7-day national workshop on research in modern political and socio perspective. This is very apt, relevant, and quite essential theme. And I want to pay my gratitudes to all organizers, organizing team, organizing committee of SIG Government PG College, Mirzapur. And this is sponsored by Department of Higher Education, Uttar Pradesh Government, all organizing members of this renowned, very renowned, prestigious workshop. I humbly render my thanks to all of you.
And first of all, before initiating my lecture, I will want to come on hypothesis and research design. मेरा जो विषय रहेगा वो परिकल्पना और रिसर्च डिजाइन पर रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में मूल बातें जो है वो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी। रिसर्च क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हम ब्रेक करते हैं इनको, रिसर्च मेथड ओलॉजी। तो री मीन्स की रिपीट, पुनरावृत्ति। कुछ शब्दों का जनरलाइजेशन यदि हम करते हैं, सामान्यकरण करते हैं, उसको यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं, उसका सार्वभौमिककरण करते हैं, दैट इज रिपीट, री। सर्च, व्हाट इज सर्च? हम नए ज्ञान की खोज कर रहे हैं, दैट इज अनुसंधान। अनुसंधान क्या है कि कुछ नया ज्ञान, कुछ नए इनोवेशंस करना, टू फाइंड आउट, अन्वेषण करना, कुछ नया निकालने का प्रयास करना। फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो हमारी स्पेसिफिक होती है, हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडी का वो कुछ स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए हम महिलाओं पर अध्ययन कर रहे हैं, महिलाओं के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो घटता लिंगानुपात के बारे में या शिशु लिंगानुपात के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसी डेमोग्राफी या उसी स्थान पर हम जाना चाहेंगे। यदि हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो सैम्पलिंग है वो उसी आधार पर निर्धारित होगा। हर रिसर्चर को, हर शोधक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वो किस विषय पर में अपना ज्ञान या ज्ञानार्जन या ज्ञान की खोज करने वाला है, नए ज्ञान की खोज करने वाला है। तो हमें उस आधार पर, हम जो स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं उसके आधार पर हम प्रमाणीकृत करने का प्रयास करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि होना चाहिए ग्राउंडेड इन ट्रूथ, जो कि सच्चाई या तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण और अन्वेषण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिसर्च की, हम बात कर चुके हैं, हम अब आते हैं मेथोडोलॉजी पर। व्हाट इज मेथड? मेथड मीन्स डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का विश्लेषण हम किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में गुडे एंड हेड जो है बहुत अच्छे रिसर्चर है, उनकी बहुत अच्छी बुक्स भी अवेलेबल है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, जो कि हर रिसर्चर को पढ़नी भी चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। हम उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने दो चीजों में अंतर स्पष्ट किया है, जो कि हर रिसर्चर को पता होना ही चाहिए। हम एज ए सोशल साइंटिस्ट, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, हम शोधक के रूप में हमें इन बातों की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि डेटा और फैक्ट्स में अंतर होता है। डेटा जो है वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स कहलाते हैं, यानी कि तथ्यों का सांख्यिकी प्रदर्शन किस तरीके से किया जा सकता है, तथ्यों का हम सांख्यिकी प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेटा और डेटम। व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटम? डेटा जो है वो प्लूरल कंसेप्ट है, प्लूरल फॉर्म है, और डेटम इज द सिंगुलर। वी कांट यूज द वर्ड डेटाज, जैसे अमूमन हम प्रचलन में कई बार बोल देते हैं कि मैंने डेटाज यहां से कलेक्ट किए, दैट इज रॉन्ग टर्म। हम डेटाज वर्ड जो है कभी भी यूज नहीं कर सकते। डेटा इज अ प्लूरल टर्म एंड डेटम इज अ सिंगुलर। तो हमें इन चीजों का, हम एज ए रिसर्चर हमें ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स है एम्पिरिकल वेरिफिकेबल ऑब्जर्वेशन, यानी जिसका हम अनुभव मूलक प्रमाणीकरण कर सके, अनुभवों के आधार पर उसको हम प्रमाणीकृत करने का प्रयास करें, उसका हम विश्लेषण करने का प्रयास करें, उसको प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। तभी हम लास्ट में किसी भी, अगर हम मैथमेटिक्स में देखते हैं तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें लास्ट में हम बोलते हैं हैंस प्रूव्ड। उसका इसी तरह हम सोशल साइंटिस्ट है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो हम क्या यूज करते हैं? हम थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस के माध्यम से हम प्रकल्पना निर्धारित करते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने बात की अभी आपसे आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा, डेटम और फैक्ट्स के बारे में। अब जो डेटा एनालिसिस करेंगे हम, जो डेटा एनालिसिस करेंगे, जो जो हमारे डेटा है उनका जो विश्लेषण करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी। स्टैटिस्टिकल उसका एक आधार होता है, यानी सांख्यिकी, और एक असांख्यिकी आधार जिसमें नॉन स्टैटिस्टिकल। जो स्टैटिस्टिकल होता है वो हम
क्वांटिटेटिव, जो गणनात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, जिसमें कि सूत्र और समीकरणों का अध्ययन करते हैं। सूत्र और समीकरणों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल यानी गैर सांख्यिकी, जिसमें कि हम क्वालिटेटिव या फिर गुणात्मक शोध की बात करते हैं, जिसमें हम तथ्यों का अवलोकन करते हैं। हम सोशल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, हमारी स्टडी का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्वालिटेटिव जो हुआ है, हम गुणात्मक रूप से ही हमारी जो शोध पद्धति है उसका उपयोग करते हैं। स्टैटिस्टिकल भी डेटा यूज करते हैं, हम वेन डायग्राम बताते हैं या पाई डायग्राम बताते हैं, उसको उसके संदर्भ में हम स्टैटिस्टिकल उसका विवरण देने की कोशिश करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, सारणीकरण करते हैं चीजों का, तो हम उस तरीके से उसका वर्णन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से, जैसे आरटीजी फैक्टर, हमारी जो शोध है वो रिलायबल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो रिलायबल होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, कि एक शोध यदि कोई कर रहा है तो उस शोध से दूसरा जो रिसर्चर है, शोधक है, वो किस तरीके से अपना डेटा कलेक्ट कर सकता है, वो उससे किस तरीके से उसको अपना आधार बना सकता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरीके से कर सकता है, वो देखने का हम पूर्व शोधों के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो उस विषय की जनरलाइजेशनबिलिटी भी होनी चाहिए, उसका सामान्यीकरण भी होना चाहिए, कि उसको जो शोध है वो हम यूटोपिया में नहीं हम सृजन करते हैं, शोध का उसका कुछ वास्तविकरण होना चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम यूटोपिया या कल्पना लोक में नहीं जीवन यापन कर रहे हैं, हम यथार्थ में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए हमें उसकी एक विशद और विश्लेषणात्मक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब हमने बात की रिसर्च, अब मेथड्स की बात की। मेथड्स में भी हम बात करते हैं, जैसे अधिकतर हम बोल देते हैं कि वो इसके सेम है, आइडेंटिकल है, कि ये जो डेटा है और ये डेटा जो है वो मिलता जुलता है, सेम है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम सेम यानी हूबहू, सिमिलर, और सेम यानी आइडेंटिकल, और सिमिलर यानी तकरीबन तकरीबन एक जैसा है। जिसमें कि हम जैसे स्यादवाद, जैन धर्म में हम स्यादवाद का अध्ययन करते हैं, उसमें बोलते हैं कि शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। हाथी की पूंछ देखकर हम अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं कि तकरीबन ये हो सकता है या शायद ये हो सकता है। तो सेम और सिमिलर में यही अंतर है। तो लॉजी, हम अब लॉजी पर आते हैं। लॉजी क्या है? लॉजी यानी टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। कैसे अध्ययन करा जाता है? सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए हमारा अध्ययन, और पूरा लॉजिकल सिक्वेंसिंग होनी चाहिए। जब हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हम जब व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि नियमितीकरण होना चाहिए, व्यवस्थितबद्धीकरण होना चाहिए, मूल्य नहीं आने चाहिए, मूल्य सापेक्ष अध्ययन होना चाहिए। उसमें हम किस तरीके से हमारे डेटा कलेक्शन करते हैं, तकनीक का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो टू स्टडी सिस्टमेटिकली, हम अध्ययन जो है वो व्यवस्थितबद्धीकरण तरीके से करें। लॉजिकल सिक्वेंसिंग होनी बहुत आवश्यक है, और जो बॉडी ऑफ द नॉलेज है वो किस तरीके का, हम जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ से लेंगे, और सब्जेक्ट का चॉइस जो है वो किस आधार पे करेंगे। टू डेवलप साइंस, हम जो है शोध जो कर रहे हैं वो उसका आधार या बेसिस यही है कि हम जो है एक विज्ञान तक, हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो डेवलप करने का प्रयास करें। और उसमें कहीं ना कहीं यदि हम विज्ञान को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ तक जाएगा, जो कि सार्वभौमिक सत्य तक जाएगा। क्योंकि सार्वभौमिक सत्य इस आधार पर निर्धारित होगा कि हम देख सकते हैं कि किसी भी रूप में यदि हम यह स्टडी करते हैं कि सूर्य जो है वो पूरब से उदय हुआ है, या गैलीलियो ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, या न्यूटन्स का ग्रेविटी लॉ हम स्टडी करते हैं, या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर H2O बनाता है, वाटर कंटेंट बनाता है, तो ये हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे इंडिया में जाएं या लंदन में जाके उसकी स्टडी करें, हर जगह वो समान रूप से देखा जाएगा। उसी तरीके से यदि हम देखें कि इस जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होगा उसके आधार पर हम लास्ट एंड फाइनली हम जो है वो थ्योरी बिल्डिंग करने का प्रयास करेंगे। उससे हमें लास्ट में एक थ्योरी बिल्डिंग होगी जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यहाँ तक हमने बात की रिसर्च मेथोडोलॉजी की। जैसे हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं कि कोविड पीरियड में यदि हम यह देखना का प्रयास करें कि उच्च शिक्षा में अच्छा अध्ययन हुआ या नहीं, ये हमारी हाइपोथेसिस है।
जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं बात करने का प्रयास करूंगी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च यदि हम देखें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, तो दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यानी कि लघु कालिक उद्देश्य, लघु कालिक उद्देश्य से हम फिनोमिनन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड फिनोमिनन। तो उसको हम दो आधारों पर समझने की कोशिश करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट और ट्रू। तो एब्स्ट्रैक्ट होगा अमूर्त, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। यदि हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसी चीजों के भावनात्मक, जैसे भाववाचक संज्ञा है, भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में यह देखेंगे कि इमोशंस है या फीलिंग्स है, तो वो अमूर्त में आ जाता है। या आस्था का विषय है कि ईश्वर जो है वो दिखाई दे रहा है या नहीं, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। और ट्रू जो कि हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल है, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हम जाके सैम्पलिंग कर सकते हैं, जिसको जाके हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। तो टू अंडरस्टैंड न्यूमेटिक फैक्टर्स, इनविजिबल होते हैं लेकिन फ्री होते हैं। जैसे इमैनुअल कांट ने बताया था कि कुछ परसेप्शंस होती हैं, कुछ अवधारणाएं होती है जिनकी हम स्टडी करते हैं। तो हम जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो टू अंडरस्टैंड फिनोमिना होता है, टू अंडरस्टैंड न्यूमेटिक फैक्टर्स होते हैं, टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स होते हैं। जो कारक हैं बहुत सारे, हर एक फिनोमिना के बहुत सारे कारक होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बहुकारक और बहुआयामी अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। उसी के आधार पर हम क्या स्टडी करते हैं कि काउजल रिलेशनशिप देखें, कार्य कारण संबंध जो है, इफेक्ट काउज रिलेशनशिप देखने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर ए घटना घटित हो रही है तो उसका प्रभाव बी हो रहा है। कोविड जो घटना घटित हुई तो उसका जो प्रभाव हमारे इकोनॉमिक रेसेशन पर पड़ा, आर्थिक मंदी आई, हमारा जो बाजार है वो जीडीपी नीचे चली गई। तो ये किसी एक देश की घटना संदर्भ नहीं है, ये पूरे विश्व में ये इसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। अब बात करें कि उससे एजुकेशन सेक्टर कैसे इन्फ्लुएंस हो, तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो क्या साबित कर रही है कि हम किसी कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इकोलॉजिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, हम इकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पर देखने का प्रयास करते हैं कि वहां का जो पर्यावरणीय गतिविधियों का प्रभाव हमारे शोध पर किस तरीके से पड़ रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी हमारा जो अध्ययन होता है वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन भी होता है। अब हम बात करें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की, दीर्घकालिक उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें कि हम क्वांटिफाइंग करते हैं, चीजों को क्वांटिफिकेशन करते हैं, सांख्यिकीकरण करते हैं, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम वैज्ञानिक शोध करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पर हम कहाँ तक पहुंचते हैं, वो हमें पहुंचाता है यूनिवर्सल ट्रुथ तक। सार्वभौमिक सत्यताओं का पता लगाने का हम प्रयास करते हैं, हम सार्वभौमिक सत्यताओं को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसके माध्यम से थ्योरी बिल्डिंग तक जाते हैं। हम देखते हैं कि थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, सिद्धांत निर्माण करने की कोशिश करते हैं, और उसके आधार पर एनरिचमेंट ऑफ द सब्जेक्ट होता है, किसी भी विषय का संवर्धन होता है, विषय वस्तु का हम संवर्धन करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि थ्योरी बिल्डिंग या जो सिद्धांत निर्माण है वो क्यों आवश्यक है, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता क्यों है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग थ्योरी है डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मूला। यदि जो प्रचलित जो अगर सिद्धांत है वो किसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हम रिजेक्शन ऑफ द थ्योरी करने की कोशिश करते हैं, जो कि रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो पूर्व में प्रचलित अवधारणाएं हैं वो कई बार गलत सिद्ध हो जाती है, तो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोविड जो है वो क्यों आया, तो उसके हम कारणों का एक साल से हम अवलोकन कर रहे हैं, और किसी एक स्टेट या किसी एक देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल क्राइसिस है, ग्लोबल जो बीमारी है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हम सिद्धांत निर्माण, एक तो रिजेक्शन ऑफ द थ्योरी, पूर्व जो सिद्धांत है उसको हम निगेट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, वी आर रीडिफाइनिंग, हम उसकी पुनर्विवेचना करने के लिए, या मॉडिफाइंग थ्योरी, किसी थ्योरी का नए सिरे से उसका सृजन करने के लिए हम थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं। ये न्यू थ्योरी, बिल्कुल नए तरीके की, जैसे न्यूटन की थ्योरी या फिर
हम देख सकते हैं कि ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी या केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जब आया तो उनके आधार क्या रहे, उनको किसी तरीके से स्टडी की गई। तो न्यू थ्योरी बिल्डिंग के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे कि करप्शन है वो कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी कर रहा है, या उससे जो है करप्शन की जो अवधारणा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के कारण आ रहा है या क्यों आ रहा है। तो हम इन आधारों पर देख सकते हैं कि उसकी स्टडी की जाती है, करप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि करप्शन के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आ रही है या ऑनेस्टी है, उसका मापीकरण किस तरीके से संभव है, हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी जो है जो एक तरह से एक हम उसका मापीकरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है, तो उन्होंने हिडोनस कैलकुलस पढ़ा होगा कि जिसके माध्यम से हम सुखवादी मापक यंत्र कि हम सुख की जो है इंटेंसिटी के आधार पर या उसके कई कारकों के आधार पर उसका पता लगा सकते हैं। तो दैट इज, बट हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट जो है वो हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो प्रयोगशाला या हमारा जो एक्सपेरिमेंट या शोध का विषय जो है वो मोस्टली ह्यूमन बिहेवियर रहता है, जो नित्य प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। आज हम देख सकते हैं कि जो हमारा रुख है वो किसी और तरीके का होगा, तो नेक्स्ट क्षण ही हम किसी और विचारधारा या किसी और रुख के पक्ष परिचायक या पक्षपाती हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की, हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है वो ह्यूमन बीइंग है, तो हम और ह्यूमन बीइंग जो है बदलता रहता है। हम किसी केमिकल की स्टडी नहीं कर रहे जो कि हर केमिकल जो है वो परिस्थितियों में एक जैसा बिहेव करता है या उसकी सराउंडिंग्स में एक जैसा बिहेव करता है, या अगर हम जो है किसी पानी को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -डिग्री में ले जाते हैं तो वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, हम वो चीज नहीं, वो हर जगह समान रूप से लागू होगा। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है, तो ये हर जगह होगा। तो ये चीजें जो है, ये स्टडी जो है वो सिद्ध हो चुकी है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर, आज राजनीतिक दलों की स्टडी हम करते हैं या व्यक्ति की स्टडी करते हैं तो वो परिवर्तनशील है। तो हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर जो साइंसेज है। तो उनसे लाइफ साइंसेज या हमारी बिल्कुल परिशुद्ध रूप से विज्ञान है या गणितीय मापदंड है, गणित के आधार पर हम देखें तो उसका जो सांख्यिकी विवरण है वो भी, यदि हम बात करें हमारी जो जनसंख्या का है या शिशु लिंगानुपात है तो वो परिवर्तनशील है। हमारी एजुकेशन का सेक्टर यदि हम स्टडी करें तो वो परिवर्तनशील है। हम अगर 1952 में यदि लोकसभा चुनाव का अध्ययन करें, उसमें वोटिंग बिहेवियर की स्टडी करें और 17वीं लोकसभा के वोटिंग बिहेवियर की स्टडी करें तो वो भी परिवर्तनशील है। तो उसमें हम जो है एक बिल्कुल स्पेसिफिकली यह नहीं कह सकते कि जैसा 1952 में था वैसा का वैसा आज भी प्रचलित है। तो हम हमारी जो दीर्घकालिक उद्देश्य है उसके माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम सांख्यिकीकरण करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, सार्वभौमिक सत्यताओं को स्थापित करते हैं और ये सब देखते हैं। और थ्योरी बिल्डिंग इन्हीं आधारों पर, जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बताए मैंने, उसी आधार पर हमारी थ्योरी बिल्डिंग की जाती है। और उसी आधार पे हम, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का अगर हम फैक्टर को अगर हम उसको वर्णन करने की कोशिश करें तो इनकम, अगर ज्यादा इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज्यादा होंगे, या फिर इनकम बढ़ेगी और मोर डिसऑनेस्टी, इनकम के कम होने से डिसऑनेस्टी आएगी। तो ये कुछ ऐसे मापदंड है जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। एक बहुत गरीब व्यक्ति भी बहुत ऑनेस्ट हो सकता है और एक बहुत पैसे वाला समृद्ध व्यक्ति भी डिसऑनेस्ट हो सकता है। हम समय समय पर ऐसे एग्जाम्पल, जो करप्शन की रिपोर्ट्स आती है या एसीबी की कार्यवाही जो नित्य प्रतिदिन हम देखते हैं, उसमें हम ये चीज स्पष्ट रूप से हम इसका अवलोकन, विश्लेषण और साइंटिफिक आधार पर हम देख सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बात करें कि शोध कार्य का हम समारंभ कैसे करें, शोध कार्य जो है वो किस तरीके से होगा। तो रिसर्च करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होनी चाहिए, कि किसी भी समस्या का हम निरूपण करें, समस्या क्या है, समस्या का निर्धारण होना चाहिए कि समस्या कौन सी है।
हमारे सामने सबसे पहले समस्या होगी, उसके आधार पर हम फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे और सामान्य ज्ञान के आधार पर समस्या के सुझाव, प्रस्तावना व समाधान की खोजने की प्रक्रिया करेंगे। और यही जो प्रस्तावना रखी जाती है, समाधान खोजने की अवस्था स्थापित की जाती है, या वो जो प्रोसीजर है अडॉप्ट किया जाता है, उसको हम उपकल्पना, परिकल्पना, प्रकल्पना या फिर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। उपकल्पना, परिकल्पना या प्रकल्पना या हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है। तो वस्तुपरक ढंग के अध्ययन की वैचारिक योजना, यदि हम कोई भी वस्तुपरक ढंग से अध्ययन करते हैं, उसकी कोई वैचारिक योजना स्थापित करने की कोशिश करते हैं, पूरा एक प्लानिंग वे में, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, या शोध की रूपरेखा निर्धारित करते हैं, तो वो जो प्ररचना या अभिकल्प, प्ररचना अभिकल्प कहलाता है, यानी रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसमें हम लेआउट प्लान करते हैं, जिसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समस्या को देखते हैं। समस्या एक आनुभाविक भी हो सकती है, विश्लेषणात्मक हो सकती है, मानकीय हो सकती है। जैसे मान लीजिए आनुभाविक समस्या की हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र जो है, हम ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र जहां होगा वहां स्थायित्व होगा। ये हमने एक बात रखी कि लोकतंत्र जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी वहां वहां स्थायित्व होगा, ठीक है। या लोकतांत्रिक जहां जहां व्यवस्था होगी वहां समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का भाव होगा। अब इसमें हम जो आनुभाविक आधारों पर जो निरूपण करते हैं समस्या का, उसका हम उत्तर यस या नो, हाँ या ना में देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो एनालिटिकल स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो समस्या का दूसरा स्वरूप है विश्लेषणात्मक, कि जैसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि कोविड काल में जो हायर एजुकेशन है उसका स्तर क्या रहा, हायर एजुकेशन की स्टडी जो है वो उस पर बहुत रचनात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा, या गुणात्मक दृष्टि से उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रेगुलर हो पाई, उससे समय समय पर लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो पाए, जिससे बच्चों को ज्यादा ज्ञान हो पाए। तो ये विश्लेषणात्मक अध्ययन हो गया हमारा। अब हम तीसरी बात क्या करेंगे, नॉर्मेटिव, मानकीय, जो कि मूल्य परक होती है और एक निर्देशात्मक होती है। नॉर्मेटिव या मानकीय मूल्यांकनात्मक या मूल्य परक या निर्देशात्मक होती है। इवैल्यूएटिव यानी कि हम बात करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र की बात करें फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप कि लोकतंत्र जो है वो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है तानाशाही से। तो ये तो क्या हो गया, मूल्यांकन किया हमने, कि मूल्यांकन दोनों में से श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है वो बताने का प्रयास किया, कि लोकतंत्र जो है वो तानाशाही से श्रेष्ठ है। ये मूल्यांकन हो गया। अब दूसरी बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं निर्देशात्मक, जो मानकीय व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो प्रेस्क्रिप्टिव, जो निर्देशात्मक व्यवस्था है, जो प्रेस्क्रिप्टिव या डायरेक्शनल व्यवस्था है, उसमें हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल सभी देशों, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था, अभी हमने बताया मूल्यांकनात्मक में कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो तानाशाही से श्रेष्ठ है, तो सभी देशों का शासन जो है वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। अगर हम ये बात करते हैं कि सभी देशों का शासन जो है वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, तो उस संदर्भ में हम बात करेंगे कि जो हमने डायरेक्शन दी है कि लोकतंत्रात्मक शासन ही होना चाहिए, किसी भी शासन व्यवस्था का स्वरूप जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब हम रिसर्च डिजाइन एज प्लानिंग टू टेस्ट द हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। तो रिसर्च डिजाइन प्लानिंग टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि एक लेआउट प्लान होता है। रिसर्च डिजाइन यदि हम कर रहे हैं, रिसर्च डिजाइन अगर हम कर रहे हैं, प्ररचना अभिकल्प स्थापित कर रहे हैं, तो वो एक लेआउट होता है। जैसे कोई भी आर्किटेक्चर यदि कोई बिल्डिंग बना रहा है तो एक लेआउट प्लान तैयार करेगा, एक आउटलाइन बनाएगा, वो अपना संसाधन देखेगा कि किस तरीके से हम लेआउट प्लान तैयार कर सकते हैं, प्लानिंग करेगा, अरेंजिंग डिटेल्स करेगा, एक स्ट्रेटेजी बनाएगा, प्रोसीजरिंग स्ट्रेटेजी करने की कोशिश करेगा और रिसर्च को कंडक्ट करने की कोशिश करेगा। तो मार्टिन बामर जो है उन्होंने एक बात कही है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का निर्धारण होना बहुत जरूरी है, डेरिवेशन ऑफ हाइपोथेसिस टू टेस्ट एंड डिफाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, कि किसमें हम यदि महिलाओं के विकास के संदर्भ में स्टडी करना चाह रहे हैं तो महिला अधिकारिता में जाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम
महिला अधिकारिता विभाग से डेटा कलेक्ट करेंगे, या फिर हम जाएंगे वास्तव में देखना चाहेंगे कि किस किस तरीके से स्टडी, इसी तरीके से कोविड का हायर एजुकेशन पे प्रभाव की हम स्टडी करना चाहेंगे, तो हमारा जो सैंपल होगा वो 5 कॉलेजेस या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन पे जाएंगे कि वहां किस तरीके से इसमें उन्नति हुई या कमी आई, वो बाद में सिद्ध होगा। तो ये ज्ञान की खोज है एक तरह से। इसी तरीके से हाइपोथेसिस क्या है, एक बेस लाइन तैयार करते हैं, फिनोमिना तैयार करते हैं। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है कि एक टू सजेस्ट न्यू एक्सपेरिमेंट, हम नए नए एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और सजेस्ट न्यू ऑब्जर्वेशन, हम नए नए अनुभव शेयर करने की कोशिश करते हैं। थियोडरसन ने बताया कि हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव इसलिए कि अभी सिद्ध नहीं हुआ। हम कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छी शिक्षा हुई है, कोविड काल में एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा, लेकिन हम जब उसकी स्टडी करते करते आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो रिमोट एरियाज में, या जो जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास एंड्रॉइड नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, या जो कि संसाधन विहीन है, हैव्स और हैव्स के पास तो है लेकिन हैव नोट्स के पास जो संसाधन नहीं है, तो वहां किस तरीके से, जो ऑनलाइन नहीं है, उनके पास डेटा नहीं है, वो उस तरह उनकी रीच कितनी है, तो उन सब चीजों की स्टडी करेंगे तो वो जो है वो हमें सिद्ध करेगा। बाद में हमारी हाइपोथेसिस सही भी सिद्ध हो सकती है या गलत भी सिद्ध हो सकती है, और इस आधार पे ये है कि गलत भी सिद्ध होगी, लेकिन वो एक विश्लेषण, एक सत्य तक पहुंचने का प्रयास होगी। असर्टिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन फैक्ट्स, हम किसी सर्टेन फैक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कर्लिंगर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने यही बताया कि अपनी उनकी एक पुस्तक थी जिसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए, फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बताया कि कंजेक्टुरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, जो 2 और मोर वेरिएबल्स में जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, प्राकथन है, वही क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। वेबस्टर ने जो टेंटेटिव अजम्पशंस स्थापित किए कि किस तरीके से हम प्ररचनाओं को स्थापित करने की कोशिश करें, मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पेरिकल, हम लॉजिकल तार्किक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं और अनुभव परक दृष्टि से भी समझने की कोशिश करते हैं, किन चीजों को, कॉन्सिक्वेंसेस, क्या घटनाएं, फिनोमिना क्या घटित हो रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके आधार पर हमारी जो टेस्टिंग है वो आइदर प्रूव होती है और डिसप्रूव होती है, रॉन्ग सिद्ध हो जाती है या कंफर्म सिद्ध हो जाती है। तो ये चीज हम जो है वो हमारे उस माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोथेसिस, प्रकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना, ये इसको हम इन नामों से जानते हैं, प्रकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना। तो जो फिनोमिना है उसको घटना, फिनोमिना यानी जो घटना है, फिनोमिना यानी घटना का अवलोकन करते हैं, उनका तथ्य एकत्रीकरण करते हैं, समस्या का अनुमानित समाधान निकालते हैं, क्योंकि अभी फिक्स नहीं हुआ कि यही समाधान हमारा जो है लास्ट और फाइनल होगा, तो अनुमानित समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और उसकी एक विधिवत जांच करने की कोशिश करते हैं, एक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, थ्योरी बिल्डिंग करते हैं। तो एक जो अनुमान है, प्रस्ताव है, कल्पना है, चिंतन है, अंतर्दृष्टि है, हमारी जो अंतर प्रज्ञा है, अंतर्दृष्टि और अंतर प्रज्ञा है, वो यही सिद्ध करती है कि किस तरीके से यह स्थापित हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है समस्या का प्रश्न, फिर उसका हम अनुमान लगाते हैं, फिर उसके लिए प्रकल्पनाओं को खोजने की कोशिश करते हैं। प्रकल्पना यानी किसी समस्या के समाधान का एक अग्रिम विचार जो है वो तलाशने की कोशिश करते हैं। दिशा सूचक होता है जिसकी जांच करना अभी की नहीं गई है, बाकी है, जिसको अभी जांचा जाना बाकी है, तो ये प्रकल्पना हो गई। और उसके बाद हम अनुसंधान का आरंभ बिंदु जो है वो मार्ग निर्देशक होता है। एक तरह से जो प्रकल्पना है वो किसी भी जो अनुसंधान का आरंभ बिंदु माना जाता है। हम किसी को भी सोच के संदर्भ में अपना एक राय रखने की कोशिश करते हैं, अनुसंधान का आरंभ बिंदु या मार्ग निर्देशक माना जाता है। जी, क्वेश्चंस जो है लिए जाएंगे, ठीक है। अनुसंधान का आरंभ बिंदु माना जाता है, मार्ग निर्देशक माना जाता है प्रकल्पना, ठीक है। तो हम उसकी जांच करेंगे धीरे धीरे। जी.ए. लुंडबर्ग जो थे उन्होंने यही बात की। जी.ए. लुंडबर्ग उन्होंने कहा कि अस्थायी सामान्यीकरण जिसकी प्रामाणिकता की जांच अभी शेष है, बाकी है, क्योंकि हम जनरलाइजेशन जो है अभी हमारा स्थायी नहीं है,
हमारा अभी जो जनरलाइजेशन है उसकी प्रामाणिकता की जांच जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए उसकी जांच अभी की जानी बाकी है। गुडे एंड हेटे ने उन्होंने यही बात बोली है कि प्रस्तावना या प्रीपोजिशन है जिसकी प्रामाणिकता या वैलिडिटी, प्रामाणिकता या वैलिडिटी की जांच ही या परीक्षा की जा सकती है। हम उसकी धीरे धीरे सैंपलिंग के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसकी सैंपलिंग करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बर्नार्ड फिलिप्स ने भी यही बात कही है कि घटनाओं के मध्य जो संबंधों का जो अस्थायी कथन है, क्योंकि स्थायी नहीं है अभी, वही क्या कहलाता है अभी, वह हमारी परिकल्पना, प्रकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना कहलाता है। गुडे एंड हेटे ने जो है उन्होंने बताया कि प्रकल्पना निर्माण में जो है कुछ समस्याएं आती है। जैसे एक तो शोधक जो है, रिसर्चर है, वो अपना सैद्धांतिक रूपरेखा का अभाव होता है, उसमें सैद्धांतिक रूपरेखा का अभाव हो सकता है। और शोधक के पास मान लीजिए सैद्धांतिक रूपरेखा है, उसके पास डेटा है, सब कुछ है, सैद्धांतिक रूपरेखा भी है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, बहुत सारा संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उपयोग करने की योग्यता का अभाव है, तभी हम उस रिसर्च को उन स्थितियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तीसरी बात, शोधक में अनुसंधान प्रविधि के ज्ञान का अभाव है, तो इसलिए जो शोधक है उसमें अनुसंधान प्रविधि के ज्ञान भी उसी रूप में होना आवश्यक है। और राजनीतिक घटनाएं, क्योंकि हमारे साथ यदि हम स्टडी कर रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट यदि स्टडी कर रहा है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है, तो मैंने पूर्व में भी बताया कि हमारे अध्ययन का जो एरिया है वो है ह्यूमन बीइंग। पॉलिटिशियंस है या समाज वैज्ञानिक है या समाज का जो तबका है, कोई भी तबका हो सकता है, गरीब तबका, अमीर तबका, या किसी भी तरह का हमारा स्टडी हो सकता है महिलाओं के संदर्भ में, तो हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो है ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग या राजनीतिक घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, वो तेजी से परिवर्तित होती है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। आज यदि हम किसी स्टडी के निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो अगले ही पल वो पूरी की पूरी परिघटना ही परिवर्तित हो जाती है। तो समाधान खोजते खोजते हम जो है उसके मूल स्वरूप में ही चेंज आ जाता है। तो शोधक का कई बार क्या होता है कि हम उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो विचारधारा है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शोधक का जो पूर्वाग्रह है, पक्षपात है, अज्ञानता है, या फिर प्रकल्पना की कथन करने में कहीं ना कहीं हम एथनोसेंट्रिज्म ले आते हैं, हमारा कोई लिंग, भाषा, जाति या धर्म का अहम ले आते हैं कि नहीं हम सर्वोपरि है, तब भी हमारा शोध जो है वो प्रभावित होगा। तो इन चीजों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अगर सुझाव देना चाहें तो शोधक जो है वो तथ्यों को देखे, शोधक को तथ्यों की स्टडी करनी चाहिए और उसको अपनी प्रकल्पना, जो भी उसने हाइपोथेसिस दी है, उसको उसकी असत्यता को मानने को तैयार रहना चाहिए। उसको अपनी, अगर वो शोध की कहीं ना कहीं अगर असत्यता स्थापित होती है, शोध कहीं असत्य सिद्ध होता है, तो उसको भी स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि मेरा शोध जो है वो किसी स्तर पर वो गलत भी सिद्ध हो सकता है या नल एंड वॉइड भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए भी उसको जो है तैयार रहना चाहिए। और उपयोगिता जो है तभी सिद्ध हो सकती है जब हम उन तथ्यों का, उन घटनाओं का हम तीक्ष्ण अवलोकन करें, अनुशासित होकर अवलोकन करने की कोशिश करें, कल्पना लोक से इतर होकर तथ्यों के धरातल पर उसकी स्टडी करने की कोशिश करें, रचनात्मक चिंतन करने की कोशिश करें, सैद्धांतिक रूपरेखा का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने की कोशिश करें। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस की प्रकल्पना के स्रोत क्या क्या होंगे। एक तो होते हैं व्यक्तिगत स्रोत और एक होते हैं बाह्य स्रोत। व्यक्तिगत स्रोत में इंडिविजुअल सोर्स होगा और एक है एक्सटर्नल सोर्स या बाह्य स्रोत। तो हम जो व्यक्तिगत स्रोत है उसमें हम शोधक की कल्पना आ जाती है, हम क्या कल्पना करते हैं, हमारी क्या सोच है वो आ जाता है, अनुमान आ जाते हैं, हम क्या अनुमान लगाते हैं, हमारी क्या विचार है वो आ जाती है, हमारी अंतर्दृष्टि क्या है, हमारी अंतर प्रज्ञा क्या है, हमारी बुद्धि किस तरीके से घटनाओं का अवलोकन करती है, तो अंतर्दृष्टि आती है, अंतर प्रज्ञा आता है, हमारा अनुभव किस तरीके से है घटनाओं को समझने के लिए, हमने अब तक हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी अपब्रिंगिंग है, वो किन
स्तरों पर हुई, हमारा विद्यालय कैसा है, हमारा जो पारिवारिक स्तर है वो कैसा है, तो उन आधारों को हम देखते हुए व्यक्तिगत स्रोत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाह्य स्रोत क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि साहित्य हो सकते हैं, समाचार पत्र हो सकते हैं, दूसरों के अनुभवों को हम देख सकते हैं, तो उन आधारों पर हम अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करेंगे, गुडे एंड हैटे ने 4 तरह के सोर्सेस बताए हैं। 4 तरह के सोर्सेस कौन कौन से? एक तो सामान्य संस्कृति हो गई, जनरल कल्चर, यानी कि सामाजिक समस्या को देखने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गई हमारी सामान्य संस्कृति। और वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो दूसरा सोर्स हो गया, जो गुड एंड हैटे ने बताया है कि साइंटिफिक थ्योरी, जिसमें कि हम पूर्व ज्ञान होना चाहिए हमारा, और एक पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। पूर्व ज्ञान के साथ साथ पूर्ण ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम निगमन अध्ययन करते हैं या डिडक्टिव स्टडी करते हैं जो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, तो हम पूर्व ज्ञान होगा हमारा और पूर्ण ज्ञान होगा, उसी के आधार पर हम घटनाओं, फिनोमिना या तथ्यों का अवलोकन कर सकते हैं, डेटा की स्टडी कर सकते हैं। इसी के आधार पर सादृश्यता या एनालॉजी देखने की कोशिश करते हैं। 2 घटनाएं हो रही हैं, उनमें हम सादृश्यता देखने की कोशिश करते हैं, मिलती जुलती घटनाएं। जैसे हम मानते हैं कि हर 100 वर्ष में जैसे कोविड आया, तो हर 100 वर्ष में इस तरह की महामारी आती है। आप तो चाहे तो इतिहास उठा के देख सकते हैं कि ये रिपीटेशन होता है हर 100 वर्ष में। तो ये जो है हम मिलती जुलती घटनाएं मान सकते हैं इसको। और भी कई वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, सोशियोलॉजी में देख सकते हैं, हमारे जो राजनीति विज्ञानों में देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं। इसी तरीके से एक व्यक्तिगत अनुभव भी होता है हमारा, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी हमारे शोध को प्रभावित करते हैं। शोधक का निजी अनुभव, मेरा निजी अनुभव क्या करता है, जैसे न्यूटन ने जब देखा कि ऊपर से जो है फल जो है सेब नीचे गिर रहा है, तो उससे पहले भी सेब गिरे थे। ऐसा नहीं कि जब जो न्यूटन से पेड़ के नीचे बैठे थे तभी एक कोई सेब आके गिरा, लेकिन उन्होंने ही लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, उन्होंने ही बताया कि चीजें जो है वो नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी उनको ये चीज सूझी। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस है, या जिस तरह के गैलीलियो ने दिया, कोपरनिकस ने, कैप्लर्स ने दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि घटनाओं का जो है उस आधार पर, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकल्पनाओं के प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। एक चरीय घटनाएं होती हैं, बहुचरीय होता है, एक चरीय या बहुचरीय, यूनिवेरिएट या मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट या मल्टीवेरिएट। एक चर में जैसे मान लीजिए हम वोटिंग परसेंटेज का अनुभव कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि आम चुनाव को देखने की कोशिश करेंगे, तो आम चुनाव में हम वोटिंग परसेंटेज, तो ये एक चरीय घटना हो गई क्योंकि मिलती जुलती घटना। बहुचरीय घटनाओं में क्या देखेंगे कि यदि मान लीजिए हम नेशनल इनकम है उसको हम नेशनल हेल्थ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर इन्फ्लेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम यदि बढ़ती है तो उसके गरीबी, बेरोजगारी और अन्य परिघटनाओं पर, फिनोमिनास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उन आधारों पर उसका बहुचरीय आधार पर या मल्टीवेरिएट आधार अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरीके से सहचारी और असहचारी यानी एसोसिएशनल और नॉन एसोसिएशनल हाइपोथेसिस भी होती है। एसोसिएशनल हाइपोथेसिस मतलब जो डायरेक्शनल होती है, निर्देशात्मक होती है। जैसे हम बात करेंगे कि गरीबी जो है वो शिक्षा से सीधे संबंधित है, कि यदि जहां शिक्षा कम का स्तर कम होगा वहां गरीबी ज्यादा होगी, या निर्देशात्मक इनकम जहां ज्यादा होगी तो प्राइस राइज भी बढ़ेगी। या नॉन डायरेक्शनल, अनिर्देशात्मक या जिसको निषेधात्मक या जिसको नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, उसमें यदि हम बात करेंगे लिंग भेद और मतदान जिनका कोई संबंध नहीं है, तो उनको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये नॉन एसोसिएशनल हाइपोथेसिस होगी, जिसका कि आपस में कोई तारतम्यता या कोई संबंध नहीं है, लिंग भेद और मतदान की बात कर रहे हैं। या फिर हम बात करते हैं कि शाश्वत या सांख्यिकी जो हाइपोथेसिस है, यूनिवर्सल एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जो कि सोशल साइंसेज में या पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम यूज होती है, कि ये मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में या अन्य जो विज्ञान है उनमें इसका प्रयोग ज्यादा होता है। अब उसी तरीके से क्रमिक व एक समय या टेम्पोरल जो हाइपोथेसिस है वो किसी एक समय पर लागू होती है, उसकी आगे की विवेचना नहीं की जा सकती। इसी तरीके से यंग जो है उन्होंने बताया कि
जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए उसमें आनुभाविक एकरूपता होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए, उसमें जो है एक विश्लेषणात्मकता होनी चाहिए, हम एनालिटिकल आधार पर हम स्टडी कर सके, हम चीजों को समझने का और प्रयास कर सके, उन आधारों पर स्टडी जो है वो की जानी चाहिए। तो हाइपोथेसिस क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशन, यानी इंटरप्रिटेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविक सिचुएशंस को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी व्याख्या करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रपोजिशन इन टेस्टेबल फॉर्म, जो प्रपोजिशंस होनी चाहिए वो टेस्टेबल फॉर्म में होनी चाहिए। प्रिडिक्ट्स है, पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, हमारे पास एक रिलेशनशिप बताने का प्रयास किया जाना चाहिए, घटनाओं के मध्य, सर्टेन फैक्ट्स के मध्य जो है एक रिलेशनशिप बताने की एक कोशिश की जानी। सुमन मैम, प्लीज अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। ये अभी अनम्यूट हुआ है जस्ट? अभी अनम्यूट हुआ मैम, अभी अनम्यूट अच्छा, हुआ। ओके 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 मैम। तो मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं कि कच्ची बस्ती में जो शराब पीने वालों की स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो शराब पीने वाले लोग हैं वो उनका जो आर्थिक स्तर है वो निम्न होगा, वो उनके घरेलू झगड़े ज्यादा होंगे, उनमें किस तरीके का उसका प्रभाव होगा। तो हम ये मान सकते हैं शराब पीने की, कई बार फिर उसकी आगे फर्दर स्टडी की जाएगी कि शराब पीने की मात्रा कितनी है, उस पर भी निर्भर करेगा कि वो दिन प्रतिदिन निरंतर उसका सेवन कर रहा है तो उस एक परिघटना है, लेकिन उसका जो प्रभाव है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, घरेलू, पारिवारिक हर तरह से पड़ रहा है। तो उस एक घटना परिघटना एक है कि व्यक्ति जो है शराब पी रहा है, उसका किन किन घटनाओं पर जो है वो व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तो वेरिएबल वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स है, उस पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है। यदि हम उसी तरीके से यदि हम स्टडी करते हैं किसी एक घटना की, मान लीजिए एक प्रपोजिशन स्थापित हुई एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, मान लीजिए कंसेप्ट है ए है और कंसेप्ट बी है कि एक वर्किंग वीमेन है, जो काम करने वाली कामकाजी महिला है, उसका हाई स्टेटस होगा, ये हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, ये प्रपोजिशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो क्या हो गई प्रपोजिशन। और हाइपोथेसिस में हम एम्पेरिकल लेवल भी लेके चलते हैं कि वर्किंग वीमेन है तो वो क्यों समृद्ध होगी, क्योंकि शी इज एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि वो अपने डिसीजन मेकिंग खुद ले पा रही है परिवार में, और शी एंजॉयज मोर फ्रीडम, she is more respectable in her society, in her civil society, in her platform also। तो never criticize, उसकी कभी आलोचना नहीं की जाती, हम ये अवधारणा लेके चलते हैं, फिर उसको सिद्ध करने की हम निरंतर कोशिश करते हैं। तो इन आधारों पर हम जो हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रिडिक्ट्स द पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, जैसे मैंने वो कच्ची बस्ती का एग्जांपल दिया। तो हाइपोथेसिस जो है वो कुछ तरीके से लिखी जाती है, जैसे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आप सब सुनते होंगे, क्या होता है, बहुत टिपिकल लगती है, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि नल हाइपोथेसिस मींस वन विच विशेस टू डिसअप्रूव, जो रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि नो रिलेशन बिटवीन टू फिनोमिना, या फिर सिचुएशन बीइंग स्टडीज अभी स्टडी की जानी चाहिए, जैसे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस भी होती है इसमें। तो वन वेरिएबल जो है, कोई एक चर है, वन वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट और ऑन अनदर वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसको हम डिनोट करते हैं H0 से, H0 से हम डिनोट करेंगे। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हाइपोथेसिस, जो रिसर्च हाइपोथेसिस और जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, उनमें कोई संबंध नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन रिड्यूसेस द चांस ऑफ कैंसर। हमारा ये रिसर्च हाइपोथेसिस लेके चले कि कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन यदि हम ले रहे हैं तो उससे जो है कैंसर होने की जो चांस है वो कम हो जाती है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या सिद्ध करने की कोशिश करेगी, द कंजप्शन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन डज नॉट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कैंसर, यानी कि हम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं उससे कैंसर होने की चांसेस
कभी भी कम नहीं होगी। तो ये जो है उसको निगेट करने की, नल एंड वॉइड करने की कोशिश करती है, नो रिलेशन बताने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए इफ रैंडम टेस्ट रिजल्ट्स द कलेक्टेड फ्रॉम, जो कि जो रैंडम टेस्ट किया है, जो कि बॉयज और गर्ल्स से हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो ग्रुप है वो डिफर फ्रॉम ईच अदर, या फिर नल हाइपोथेसिस बताएगी नहीं कि वो, अगर बॉयज और गर्ल्स से हम यदि कोई रैंडम टेस्ट जो है वो कर रहे हैं और वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबल नल हाइपोथेसिस ये होगी कि वो सेम आ रहा है। वहां जो रिसर्च हाइपोथेसिस कह रही है कि डिफरेंट आ रहा है, और जो नल हाइपोथेसिस कह रही है कि नहीं वो सेम आ रहा है। तो यह क्या साबित कर रहा है? इट मीन्स हाइपोथेसिस given above proves that there is no relationship between बेस ग्रुप एंड टेस्ट स्कोर, यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये हो गई हमारी नल हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस की। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या जिसे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं, वो वन रिसर्चर्स वांट्स टू प्रूव, हम सही सिद्ध करते हैं उसको, उसकी अदर पॉसिबिलिटीज भी तलाशने की कोशिश करते हैं। नल हाइपोथेसिस की तरह नहीं है कि सीधे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अल्टरनेटिव में अल्टरनेटिव तलाशने की कोशिश करते हैं, उसकी अदर पॉसिबिलिटीज तलाशने की भी हम कोशिश करते हैं। तो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें एक्सपेरिमेंट होता है, इसीलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वहां कोई भी रिलेशनशिप नहीं थे नल हाइपोथेसिस में, जबकि यहाँ जो है वो रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं। वेरिएबल वन इज डायरेक्टली या इम्पैक्ट या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल टू, और इट इज डिनोटेड बाय H1, इट इज डिनोटेड बाय H1। तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि कंजप्शन ऑफ पर्टिकुलर, जो हम वो एग्जांपल वहां लेके चले थे वही हम एग्जांपल यहाँ लेकर चल रहे हैं, ताकि जिससे सुविधा होगी हमें समझने में। तो जो कंजप्शन ऑफ पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कैंसर, यानी कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से हमारा जो कैंसर की चांसेस है वो कम हो रहे हैं। तो वेरिएबल टू जो है या H1 जो है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो भी यही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, द कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कैंसर, यानी कि जो हम पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं उससे जो है कैंसर होने की चांसेस कम हो रही है। तो दोनों एक ही बात को प्रूव करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। तो इसी तरीके से यदि हम रैंडम टेस्ट देखें, रैंडम टेस्ट रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, रैंडम टेस्ट रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज। यदि हम यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाएंगे कि दैट देयर इज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ग्रुप एंड टेस्ट स्कोर। तो दोनों में एक रिलेशनशिप देखा जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है जो यह बताने की कोशिश करती है कि नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों में डायरेक्शनल समानता होती है। और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द नल हाइपोथेसिस होती है। और इसी तरीके से एक वर्किंग हाइपोथेसिस होती है जिसमें कि हम प्रिलिमिनरी अजम्पशन करते हैं, बहुत प्राथमिक रूप से अजम्प करके चलते हैं रिसर्च टॉपिक को, जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती। तो कोहन और नगिल ने यही कहा है कि समस्या की प्रस्तावित व्याख्याओं या समाधान के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, हम व्याख्या करना आवश्यक है। हम प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम व्याख्या करते हैं, प्रीपोजिशंस को बताने की कोशिश करते हैं। तो हम रिसर्च डिजाइन को देखने की कोशिश करते हैं। अब तो निर्णय को क्रियान्वित करने से पहले हम निर्णय की प्रक्रिया का अध्ययन करने की, एक विवेक संगत रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक आर्किटेक्ट बनाता है वो कोशिश करता है। तो आरंभ में जो रिसर्च डिजाइनिंग जो होती है वो अस्पष्ट होती है, हमें नहीं पता होता कि कैसे रिसर्च की जाएगी, अस्पष्ट होती है, अस्थायी होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा अध्ययन आगे बढ़ता है, हमारा अध्ययन का दायरा आगे बढ़ता है, तो उसमें कुछ सुधार होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है और उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसकी विषय वस्तु क्या है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा शोध का विषय क्या होगा, हमें किस विषय में अध्ययन करना है। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, सोर्सेस की जानकारी होनी चाहिए, अध्ययन की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा,
उसके बारे में कि हम सांख्यिकी अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत करेंगे, तुलनात्मक करेंगे, विश्लेषणात्मक करेंगे या अन्वेषणात्मक करेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। एक हमें पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, प्रस्तावना पता होनी चाहिए, शोधक की रुचि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरमोस्ट कि आपकी रुचि होनी चाहिए। यदि उस विषय में आपकी रुचि नहीं है और आपको वो विषय सौंप दिया जाता है तो आप उसमें अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। तो शोधक की रुचि होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए कि त्रुटियां क्या है, कमियां क्या है, उपयोगिता क्या है उस शोध की। मुझे ये पता होना चाहिए, मैं अगर बायस हो रहा हूँ तो मुझे अनबायस रहना है, मुझे सत्य तक पहुंचने की कोशिश करनी है और उद्देश्य जो है वो 4-5 वाक्यों में बताने का प्रयास करना चाहिए। और अध्ययन का जो सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक संदर्भ क्या है, उसकी जो मूल्य, परंपरा, मान्यता क्या है, यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। कंसेप्ट होने चाहिए, वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो चर है, वेरिएबल्स है, अवधारणा है, उनको देखने का एक काल निर्देश होना चाहिए, एक पीरियड इंडिकेशन होना चाहिए कि इस काल तक मुझे अपनी जो रिसर्च है वो पूरी कर लेनी है और इस किस काल से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए, और कितने काल में मुझे पूरी करनी है यह भी पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री और एनालिटिकल अवलोकन के लिए हमारे पास पूर्व में डेटा अवेलेबल हो है, तथ्य सामग्री के चयन का आधार व संकलन प्रविधियां होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, उसका निर्वचन करने का आधार पता होना चाहिए, टेबुलेशन आना चाहिए, हमें एनालिसिस आनी चाहिए और सर्वेक्षण काल जो है वो देखना होगा कि सर्वे का जो टाइमिंग है, पीरियड है, वो देखना होना चाहिए कि रिसर्च जो है वो कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, परिशुद्धता होनी चाहिए, स्पष्ट अवधारणा पर आधारित होना चाहिए, बायसेस नहीं होनी चाहिए, पूर्वाग्रह या अभिनति या फिर हमारे जो पूर्वाग्रह है वो नहीं होने चाहिए, प्रीजुडिसेस नहीं होने चाहिए हमारी, कि हम जो है विचारधारा से बंधे हैं तो हमारी उसी विचारधारा के आधार पर हम अध्ययन करने की कोशिश करें। हम विचारधाराओं से इतर होकर एक एज ए रिसर्चर उसकी एक गुण, दोष, अच्छाई, बुराई के आधार पर सही तरीके से उसका निरूपण करने की कोशिश करें। उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम सही तरीके से समझने का प्रयास करें और मूल्य मुक्त होना चाहिए अध्ययन। और अगर हम रिसर्च डिजाइन को अगर हम व्याख्यायित करें कि कितने इसके प्रकार हैं तो अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव होता है, जिसका अनुसंधान का उद्देश्य होता है राजनीतिक घटनाएं जो फिनोमिना है के कारणों और वास्तविकताओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई घटना अगर घटित हुई है तो उसका कारण क्या रहा है, उसका वास्तविक कारण क्या रहा है, तो उनको कार्य कारण के आधार पर समझने की कोशिश करें। वास्तविक मीडिया, आप जानते हैं मीडिया बहुत अच्छा सोर्स है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कार्य कारण को समझने की कोशिश करें। कार्यकारी प्रकल्पनाओं को जन्म जो है वो किस आधार पर होता है, कार्यकारी कल्पनाओं का, प्रकल्पनाओं को, उनको देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम सर्वे करते हैं, लिटरेचर, सर्वे ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, साहित्य का सर्वेक्षण करें, इनफॉर्मल इंटरव्यू जो भी क्षेत्र है वहां पे जाकर हम अनौपचारिक साक्षात्कार लेते हैं जी। फिर हम केस स्टडीज करते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी मैम, जी। आपकी आवाज आ रही है। मैम। वर्णनात्मक दूसरा जो है रिसर्च डिजाइन का प्रकार है वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि हम घटनाओं या समस्याओं का विस्तृत विवरण करने का, वर्णन देने की कोशिश करते हैं, मानव शास्त्रीय अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और यथार्थ और पूर्ण सूचना के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, सामाजिक संबंध करते हैं और उसको व्यवहार की अध्ययन की बारंबारता के आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रश्नावली, उसका निरीक्षण किया जाता है। एक होती है निदानात्मक, जिसमें डायग्नोस्टिक करते हैं, जिसमें कि समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाकर उस कारणात्मक काउजल इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक संकट उत्पन्न हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, यदि हम ट्यूनीशिया या कहीं पर अरब स्प्रिंग होगी है तो उनको क्यों घटनाएं घटित हो रही है, या आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी भी तरह की जो भाषावाद है, इंसर्जेंसी है, और क्यों संबंध खराब हो रहे भारत चाइना के मध्य या भारत पाकिस्तान के, इन सब राजनीतिक संकटों का जो है वो अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके प्रयोगात्मक होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, वो नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें यह समझने का प्रयोगशाला पद्धति में, यह भी विज्ञान में इसका प्रयोग अधिक होता है, वैज्ञानिक शोध में इसका प्रयोग अधिक होता है। तो हम देख सकते हैं कि एडवांटेज क्या है
हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन, तो हम यह देख सकते हैं कि साइंटिफिक बेसिस तक जाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी जो है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें और ऑप्टिमम रिलायबिलिटी पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। डिजाइनिंग हेल्प्स गिविंग यूजफुल कंक्लूजन, जो हम जो है उसका डिजाइनिंग का जो उपयोग है मीनिंग कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने शोध को अधिक प्रासंगिक या कारगर सिद्ध कर सकते हैं, अधिक रिलेवेंट बना सकते हैं। तो उसकी जो इवैल्यूएशन है वो प्रोसेस पर बेस्ड होनी चाहिए और उसके आधार पर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसका अवलोकन करने की कोशिश करते हैं और सेल्फ इवैल्यूएटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है अपने जो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस के माध्यम से और सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पहुंचने की कोशिश करते हैं। सार्वभौमिक एक शांत जो है सिद्धांत निर्माण तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं आधारों पर इसका अवलोकन किया जा सकता है। हम कई तरह के इसमें एग्जाम्पल्स भी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं कि उपचुनाव है या पब्लिक ओपिनियन है, उसके संदर्भ में देख सकते हैं परिघटनाएं। अभी किसान आंदोलन के बारे में समझने की कोशिश करें तो इसकी परिघटनाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि बात करते हैं मान लीजिए कि जो फिनोमिना, मान लीजिए तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट ज्यादा होता है, ये फिनोमिना हम लेके चले तो उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कम उम्र वाले जो है वो तेज गाड़ी चलाते हैं, या कई बार क्या होता है लाल जो गाड़ी रखने वाले तेज गाड़ी चलाते हैं। इस तरह की उदाहरण है या वेरिएंट्स है उनको हम स्टडी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर तरह का प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक नहीं मान सकते लेकिन उसका सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। जैसे सामाजिक रूप से असुरक्षित हो जाता है, उसका परिवार असुरक्षित हो जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, कोई सेटलमेंट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, या वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल जो है परिवार अक्षम हो जाएगा। तो उन आधारों पर जो है कि किस, कई बार ये होता है कि महिलाओं की ड्राइविंग सेंस जो है उसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो उसकी स्टडी की जाती है। तो उसमें इंटरकनेक्शन जो साबित कर किया जाता है वेरिएबल्स में, तो फिनोमिना, हाइपोथेसिस, उसको हम चेक करते हैं, सैंपल्स देखते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, की फाइंडिंग्स पे जाने की कोशिश करते हैं, उसके आधार पर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, एक सिद्धांत निर्माण पर पहुंचते हैं। तो वही जो है वो स्थापित करता है। बहुत सारे वेरिएबल्स मैंने आपको बताया कि बहुचरीय हो सकते हैं या एक चरीय हो सकते हैं, तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, है ना। और उसी आधार पर देख सकते हैं कि कोविड-19 के बारे में हम बोले कि वैक्सीन जो है उसकी क्या सर्कमस्टांसेस है, तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस भी देख सकते हैं, बिहार चुनाव के बारे में देख सकते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग उसको कि क्या कोविड जो है वो वैक्सीन आने के बाद समाप्त हो या कोविड के केसेस धीरे कम होते जा रहे हैं एक टाइम फ्रेम के बाद। इस तरह से हम स्टडीज कर सकते हैं, मल्टीवेरिएट स्टडी हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो यही स्थापित करती है कि हम किस तरीके से हमारा जो अध्ययन का जो क्षेत्र है उसको व्यापक बना सकते हैं। यदि हम देख सकते हैं बिहार चुनाव में जो ओपिनियन पोल और नतीजे कुछ और थे और जो वास्तविक जो नतीजे हैं वो कुछ और है। तो इस तरीके से क्योंकि हम वी हैव ए एरिया ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उन चीजों को समझने का प्रयास करना होगा और उन्हीं आधार पर हम चीजों को अधिक अच्छे से दिशा निर्देशित कर सकते हैं, समझने का कोशिश कर सकते हैं। कि जीडीपी जैसे अभी जीडीपी में हम देख सकते हैं कि बहुत रेसेशन आ चुका था, -23 तक हमारी जीडीपी चली गई थी, अब दोबारा वी शेप में आ रही है। वी शेप यानी कि पहले बिल्कुल डाउन पे जाके अब थोड़ा सुधार हो रहा है कि -23 से +26, यानी अभी जीडीपी 3 और 4% के बीच में, तो बॉटम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो उसको हम एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक हमारा स्टडी का क्राइटेरिया हो सकता है। कई तरीके के वेरियस क्राइटेरियाज है, जैसे कोविड-19 के दौरान हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो डाउन चला, तो उसके बारे में, और वो उसका इम्पैक्ट केवल ऐसा नहीं है देश विशेष में, यूनिवर्सली उसका इम्पैक्ट हुआ। तो उसमें सामाजिक विखंडन कैसे आया, पारिवारिक विखंडन, जबकि एक परिवार जो साथ रह रहा है
उसके बावजूद तलाक के केसेस क्यों बढ़े, पारिवारिक विखंडन क्यों हुआ है, उसको समझने की कोशिश करनी कि जब एक परिवार बिल्कुल एक साथ रहने का मौका मिल रहा है उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं जो है, एक फिनोमिना है लेकिन उसका प्रभाव कई तरीके से हो रहा है। तो उसको उन चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसिक अवसाद, एक परिवार साथ में रह रहा है, फिर मानसिक अवसाद की स्थितियां क्यों हो रही है, उत्पन्न हो रही है, जब हमारे पास कोई जो ऑफिस का प्रेशर नहीं है या लेक्चर का प्रेशर नहीं है, उसके बावजूद मानसिक अवसाद बढ़ रहा है। तो ये चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिलीज या जॉइंट फैमिलीज में किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। तो उन चीजों को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जॉब छूट गए तो इसलिए से मानसिक अवसाद हुआ या किसी और कारण से प्राइवेट नौकरियां चली गई तो मानसिक अवसाद इस कारण बढ़ा है। तो हम इन सब चीजों को एक रिसर्च डिजाइनिंग के माध्यम से, एक हाइपोथेसिस के माध्यम से समझने की, परखने की और उसके एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रिसर्चर को क्या होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। गुड एंड हटे भी बताया कि बायसनेस किसी भी रूप में नहीं चाहिए और उसको एक थ्योरी बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश जो है अवश्य करनी चाहिए और एक अवेलेबल टेक्निक्स के आधार पर जो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है हम उनके आधार पर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मैंने जो रिसर्च डिजाइन और हाइपोथेसिस को बनाने की कोशिश की है और अगर आपके कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो मैं समाधान करने की कोशिश करूंगी। और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मेरा पूरा व्याख्यान, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं बहुत मुश्किल और बुरी है, लेकिन आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक रूप से सुना और समझने की कोशिश की। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी, ऑल डेलीगेट्स एंड डिग्निटरीज प्रेजेंटिंग ओवर हियर। साथ ही हम्बल ग्रेटिट्यूड टू चीफ डॉक्टर अमित भारद्वाज सर, हु डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डॉक्टर SKS पांडे सर, हु इज प्रिंसिपल SIG गवर्नमेंट PG कॉलेज पैटर्न सर, और कन्वीनर सर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सर। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मुझे उत्तर प्रदेश जैसे प्रेस्टिजियस और रिनाउंड कॉलेज में बोलने का मौका दिया गया। और ये एक हमारी तकनीक है कि मैं जयपुर में बैठ कर आप लोगों से जुड़ पाई और हम जो है मैं अपनी जो है वो आप तक पहुंचा पाई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने कहा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझना बहुत कठिन विषय है, गूढ़ विषय है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ हम समझाने का प्रयास किया कि डेटा एनालिसिस कैसे होनी चाहिए, उसके मेथड्स क्या होने चाहिए, ये रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके प्रीरिक्विजिट्स क्या होने चाहिए, किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम सोल्यूशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एरिया क्या होना चाहिए और हाइपोथेसिस कैसे होनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन अपने प्रतिभागियों से मैं चाहती हूँ कि यदि आपके पास कोई सवाल है जिनका उत्तर आप मैम से चाहते हैं तो या तो चैट बॉक्स में लिख दें या अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन 1 बाय 1 करके मैम से पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैम मेरे इसमें ना तो मैं स्क्रीन मेरी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है, मैंने आपको पहले ही बताया। मुझे तो क्वेश्चन दिखाई देंगे तो प्लीज आप ही बताइएगा कि क्वेश्चन कौन से हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगी। एक्चुअली मैं मीट में मैम यहाँ साइड में 3 छोटे बार बने हुए हैं। यदि आप एक्चुअली आवाज भी बहुत ब्लर हो रही है, आवाज सही नहीं आ रही है मैम। अच्छा, आवाज भी ठीक है मैम। जो क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे तो मैं उनको जो है आपको पढ़ के बता दूंगी। जी 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 बिल्कुल। जी मैम। गौरव सर आप अपनी माइक अनम्यूट करिएगा। मैडम आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ जी मैम। क्या किसी के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है? Hello, good afternoon, ma'am. Yes, good morning, sir. I'm audible. Yes, sir. आवाज आ रही मैडम? Yes, sir. You are audible. मैं उत्तराखंड डिग्री कॉलेज से बोल रहा हूँ, पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज उत्तराखंड से। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें बिना हाइपोथेसिस के भी रिसर्च की जा सकती है?
सुन पा रहे हैं मैम? जो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो पोर्शन है वो बिना हाइपोथेसिस के भी उसमें आगे काम किया जा सकता है क्या? सुमन मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? गौरव सर जी। सुमन मैम तक क्वेश्चन नहीं पहुंच रहे हैं हमारे। हाँ, देखते हैं, मैसेज करते हैं। सुमन मैम, हाँ मेरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ मैम, हमारे एक प्रतिभागी ने सवाल पूछा है कि क्या क्वांटिटेटिव जब एनालिसिस करते हैं तो बिना हाइपोथेसिस के वो हो सकती है क्या? मैम आवाज नहीं आ पा रही है मैम, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है क्या? आपको मैं ये क्या जानना लग रहा है चाहूँ। नेटवर्क इश्यू है मैम, क्योंकि जो है आपकी पिक्चर भी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, तो कोई नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लगता है। गौरव सर, हम एक काम ये कर सकते हैं कि आज के क्वेश्चन हम लोग व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसको मांग लेते हैं और मैम जी। को हम भेज देंगे ताकि मैम उनका हमको लिखित उत्तर दे देंगे। हाँ, ये ठीक, बेहतर। जी जी सर। तो सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि आपके पास आज के इस सेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए। मैडम से उत्तर लेकर के हम उस ग्रुप में आपके जो आंसर होंगे उनको पोस्ट कर देंगे। अब मैं गौरव सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर आप मैम के प्रति आभार ज्ञापित करें। आज राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से डॉक्टर सुमन मौर्य जी आकर अपना एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। हम आपके प्रति आभारी हैं जो कि हमारे एक टेलीफोन पर निमंत्रण को स्वीकार किया। और सच बात यह है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों को या सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी वालों को छोड़ करके बहुत कम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। इन सब चीजों के बावजूद आपने इतना गुणवत्तापूर्ण व्याख्यान दिया। हम इसके प्रति आभारी हैं कि आपने कितना मेहनत किया, कितनी तैयारी किया और उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे उत्तर भारतीयों को अपने व्याख्यान से लाभान्वित किया। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पूरा महाविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है, श्रद्धावनत है कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके एक गुणवत्तापूर्ण प्रभावशाली व्याख्यान प्रस्तुत किया। साथ ही साथ हम डॉक्टर रश्मि सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तकनीकी सहयोग के साथ साथ संचालन का कार्य किया। हम आपके प्रति मैडम हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने महाविद्यालय के समस्त प्रोफेसर डॉक्टर शिवमंगल यादव जी, डॉक्टर गिरिजेश शुक्ल जी, डॉक्टर अरविंद कुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राहुल कुमार जी, डॉक्टर सुजीत सिंह जी और अपने प्राचार्य डॉक्टर SKS पांडे जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो बड़ी ही मेहनत के साथ
आज के कार्यक्रम को संयोजित किया है। साथ ही साथ हम अपने लोकल पत्रकार श्याम मोहन उपाध्याय जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करते हैं और अपने प्रतिभागियों के लिए भी आभारी हैं कि वे समय पर आए और पूरे टाइम तक लिंक पर उपलब्ध रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू। धन्यवाद सर। जी रश्मि। हाँ जी धन्यवाद सर। निश्चित रूप से सर हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन्होंने पूरे समय पूरे मनोयोग से इस सेशन में प्रतिभाग किया है और मैं चाहती हूँ कि आपका साथ ऐसे ही पूरे 6 दिन बना रहे। हमारे आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे निश्चित रूप से ऑफलाइन तो होना ही है, हमको ऑफलाइन होंगे और उनके साथ उनकी लिंक भी जनरेट होगी ताकि आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सके। तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में 6 दिन प्रतिभाग करेंगे, बचे हुए 6 दिन प्रतिभाग करेंगे। आज का भी एक सेशन बाकी होगा गौरव सर। हाँ, अभी जी 45 मिनट बाद उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा समूह में और YouTube चैनल का वो लिंक है, उस पर लोग वीडियोस देख करके अपने उपस्थित होने का प्रमाण भी दर्ज करा देंगे। अपना नाम और अपना एड्रेस उस पर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे ताकि हम लोग ये महसूस पता कर सकें कि कौन लोग उपलब्ध रहे। तो आज के जो सेकंड सेशन है उसका YouTube लिंक ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अटेंडेंस के लिए आप उसके जो चैट बॉक्स होगी उस चैट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस लिख देंगे ताकि वहां से आपके भी दिया सके। और सेकंड सेशन पर व्याख्यान जो है डॉक्टर सुमन शुक्ला राजकीय पीजी कॉलेज बागर कन्नौज देंगे और उन्होंने तैयार करके हमको भेज दिया है, हम लोग अभी बॉक्स में शेयर कर लेंगे। जी, तो राजकीय महाविद्यालय गांधी लालगंज आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता है और अगले सेशन में यूट्यूब सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ धन्यवाद। कल के सेशन की जानकारी हम लोग के ग्रुप में शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको।